सारे देश में ये योग दिवस आज 21 जून को सेलिब्रेटेड होता है. One of the major reasons for this yoga day is to make people more aware about their health. We have seen during the corona pandemic that even the best of healthcare facilities will not be able to serve each and every citizen in a time of distress. So, the best alternative is to be healthy. Even today in Kolkata or in any other cities in India, if you visit a specialist doctor, your waiting time will be at least 1 to 2 hours. The fees will be 1500 to 2000. And then the medicines that we will be taking, they might cure a lot of disease, but they also have a lot of side effects. So yoga is the way of preventive healthcare, to avoid any disease before it comes. So disease, one thing is of the physical body, and secondly also of the mind. If we are not happy, then we will not be healthy. The first step towards a healthy life is being content in our own mind. मन को प्रसन्न रखना हमारे स्वस्थता के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. तो इस साल योग दिवस का जो थीम है वसुदैव कुटुंबकम. तो मैं पहले थोड़ा सा इस थीम के ऊपर बताऊंगा. व्हाट इज़ वसुदैव कुटुंबकम, हाउ कैन वी अचीव इट बाय ब्रिंगिंग योगा इन आवर लाइफ. देन वी विल बी गोइंग इनटू द प्रैक्टिकल पार्ट. इन द प्रैक्टिकल पार्ट you all will participate as per your own physical capacity. There is no competition going on, so we will do as much as we are enjoying. Okay, so be aware of your health when you are doing it. Then at the end we will be doing some pranayama and little bit of dhyana, and I will take questions at the end of the session. Okay, so let us all close our eyes, sit with our back straight for the starting prayer. Lead and follow. I will chant one line and you all will follow. Okay, आंखें बंद कर लें. जो लोग चाहते हैं हाथ को नमस्कार मुद्रा में ले सकते हैं. ऋग्वेदीय मंत्र है ये. संगच्छध्वं संवदध्वं, संगच्छध्वं संवदध्वं, संवो मनांसि जानताम्, संभो मनांसि जानता. देवभागं यथा पूर्वे, देवभागं यथा पूर्वे, संजनाना उपासते, संजनाना उपासते. ये मंत्र का अर्थ ये है कि हम सब एक साथ चले. लेट अस ऑल वॉक टुगेदर. इन विच डायरेक्शन? इन द पाथ ऑफ राइटियसनेस. लेट अस ऑल स्पीक टुगेदर. व्हाट वी विल स्पीक टुगेदर? वी विल स्पीक टुगेदर द ट्रूथ. Let our mind become unanimous in the thought of the positive things in this world. From where we will learn this? This is the mantra of cooperation. We have learned this from the gods who had shared their knowledge, who had shared their power with us at the beginning of this creation of the universe. This is the meaning of this mantra. So this mantra is very cardinal in ensuring our good health. Why? Because this mantra speaks of cooperation. In modern education nowadays, we are learning only to compete. Competition beyond a point leads to conflict. And conflict leads to stress, tension, anxiety in our life. But if we cooperate, then our life will become much more beautiful. Do you all agree about this? That if we cooperate with each other, then life will be much more harmonious in this society. There will be less conflict.
So all the Vedic mantras are about speaking about cooperation, that let us come and do everything together. So today also we will do everything together. The theme of this year's Yoga Day is Vasudhaiva Kutumbakam. That means one world family. So how our family is made? To some extent by the bond of blood, but I would say to a greater extent by the bond of love. Do you all agree with this? कि एक परिवार में खून के संबंध तो होना चाहिए, लेकिन प्रेम के संबंध और दृढ़ होना चाहिए, तभी एक परिवार बनता है। तो ये समस्त जगत को हम अपना कुटुंब माने फैमिली कैसे बना सकते हैं? Then we will have to do some behavioral modifications. Such behavioral modifications are prescribed in the Yoga Sutras of Maharishi Patanjali. Maharishi Patanjali in his Yoga Sutras says, Maitri Karuna Mudita Upekshanam Sukha Dukkha Punya Punya Vishanam Bhavanat Chitta Prasadam. That means how we can keep ourselves content by certain behavioral changes. Practicing friendliness with the happy person, Maitri. Karuna is compassion towards the sorrowful person. Respect towards the wise and knowledgeable person. And ignoring the wicked person. If we behave like this in society, then not only our mind will be content, but we will make a lot of friends if we behave like this. अगर हम ये मैत्री करुणा मुदित भाव को अपने जीवन में ला सकते हैं, तो इससे हमारा अपना मन तो प्रसन्न रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ इस संसार में हम सबको अपना कुटुंब बना सकते हैं। और भी कुछ उपाय बताया गया है योग दर्शन में। कहते हैं कि हमको अपने जीवन में अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का अभ्यास लाना चाहिए। अहिंसा मतलब क्या है? नॉन एग्रेशन। अहिंसा, इंडियंस वी डोंट नीड टू एक्सप्लेन व्हाट इज अहिंसा, वी ऑल नो व्हाट इज अहिंसा। इट इज़ नॉन एग्रेसिवनेस। ये कैसे आएगा जीवन में? देखिए, हमारे गुरुजी है श्रीमद स्वामी सर्वानंद गिरी महाराज जी, हिमालय में रहते हैं, बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कभी कभी खाते खाते हम लोग गलती से अपने जीभ को काट देते हैं ना दांत से, तभी बहुत दर्द होता है कि नहीं? लेकिन कभी हम लोग को ऐसा लगता है कि अपने दांत को तोड़ दूँ, दांत ने जीभ को काटा है, लेट्स ब्रेक आवर ओन टीथ। डू वी हैव दिस फीलिंग्स? नो। वाई? बिकॉज बोथ द टंग एंड द टीथ आर माइन. The sense of belongingness is there. So if we want to love everyone, a sense of belongingness has to precede it. We have to have a sense of belongingness. तो वसुधैव कुटुंबकम बनाने के लिए हमको इस अहिंसा का अभ्यास करना चाहिए। कैसा अहिंसा? कि सब मेरे अपने हैं, जैसे ये दांत भी मेरा है, जीभ भी मेरा है। कभी गलती से कुछ हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हमको उसके साथ एग्रेशन के साथ पेश आना चाहिए। सो वी विल हैव टू ब्रिंग दिस इन आवर ओन लाइफ। देन ही स्पीक्स अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ सत्य, ट्रूथफुलनेस। ट्रूथफुलनेस इज द बेसिस of all relations in life. So if we are truthful, then we will be able to make more friends and we will be able to expand our family. आपको अपने मित्र के रूप में किसको अच्छा लगता है? जो सत्य बोलता है या जो झूठ बोलता है? उसको उत्तर दीजिए। जो सत्य बोलता है, one who is truthful, you would like to befriend such a person, right? So if you want to make everyone our part of the family, then we have to be truthful. अस्त्य मीन्स चोरी ना करना। देखिए 2000-2500 साल पहले लिखा गया ग्रंथ है योग दर्शन, उससे भी पुराना हो सकता है। उसमें जो कहा गया है आज भी वो इम्पॉर्टेंट है, लागू है आज। अस्त्य का साधना मतलब नॉन स्टीलिंग। तो हमारे परिवार में हम कैसे लोगों को इंक्लूड करना चाहेंगे? जो लोग चोरी करता है ऐसे लोगों को नहीं, जो लोग चोरी नहीं करता है। तो इसलिए अस्त्य का साधना हम लोगों में आना चाहिए। फिर ब्रह्मचार्य का साधना आना चाहिए और अपरिग्रह का साधना आना चाहिए। अपरिग्रह का साधना कैसा है? अपरिग्रह का साधना मीन्स नॉन होर्डिंग।
So this is a major problem with the young generation nowadays. We have so many things, but we are so discontent in the mind. You will find the younger generation, they have so many things, so many gadgets, so many dress, so many things. गाड़ी भी इतना है, टीवी भी है घर में, मोबाइल भी है. आज से 15-20 साल पहले इतना कुछ नहीं था लोगों के पास, लेकिन लोगों में कंटेंटमेंट, संतोष ज़्यादा था. डिप्रेशन केसेस कम था. आज आप कोई भी डॉक्टर के पास जाओगे तो डिप्रेशन केसेस कितना आता है आप पूछोगे तो यंग जनरेशन में वी आर हैविंग सो मेनी यंग पीपल कमिंग टू अस हु आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन. सो वी हैव टू करेक्ट दीज बिहेवियर्स. बिहेवियरल मॉडिफिकेशन इज़ द बेसिस ऑफ योगा. अगर हम समस्त जगत को अपना कुटुंब बनाना चाहते हैं, समस्त जगत को अपना मित्र बनाना चाहते हैं, बंधु बनाना चाहते हैं, तो अपने में कुछ परिवर्तन हम लोगों को ले आना पड़ेगा. कैसा परिवर्तन? जो योग दर्शन में कहा गया है, अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचार्य अपरिग्रह के परिवर्तन. ये सब हम रेगुलर लाइफ में प्रैक्टिस करना पड़ेगा. देखिए, आसन प्राणायाम तो हम आज सीखेंगे, क्योंकि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन तो चाहिए. सब कुछ करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. हम कैसे परिवार के सोचते हैं जिसमें सब कोई स्वस्थ हो. जब हम अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं, हम सोचते कि सब कोई स्वस्थ रहे. तो इसलिए परिवार में सब कोई स्वस्थ रहे, इसलिए योग के आसन प्राणायाम ध्यान इसको तो जीवन में लाना है. लेकिन वो हम दिन में 1 घंटा प्रैक्टिस करेंगे, और बाकी समय जो है उसमें हमारे सारे एक्टिविटीज़ में जो मैंने अभी बताया, योग दर्शन में कहा गया है अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचार्य, इसका प्रैक्टिस सारा दिन करते रहना है. तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है योगा का. इसके बारे में हम लोग को थोड़ा जानकारी कम है, इसलिए हम लोग नहीं करते. तो अभी हम लोग जो प्रैक्टिकल पार्ट है योग आसन का, उसमें चले आएंगे. और प्रैक्टिकल पार्ट मैंने बताया, किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो तो अपने शरीर के हिसाब से करें. अगर कोई दर्द है, कोई हार्ट प्रॉब्लम है किसी को, तो वो लोग ना करें. हाँ, हार्ट प्रॉब्लम पेशेंट है कोई इधर किसी को, तो वो लोग अवॉइड करें. ठीक है, बाकी सब कोई ऐसे कर सकते हैं. ऐसे चार्ट कोई डिफ़िकल्ट नहीं है. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक प्रोटोकॉल निकलता है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है. पहले हम लोगों को सबको उठ के खड़ा होना है. खड़ा होना है सबको. वी ऑल हैव टू स्टैंड अप. और अपने सबसे प्रिय मित्र मोबाइल फ़ोन को थोड़ा सा साइड में रख दे. ये जो पहले हम लोग करेंगे हेड एंड नेक एक्सरसाइजेज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, बिकॉज मोस्ट ऑफ अस आर वर्किंग इन द कंप्यूटर फॉर लॉन्ग आवर्स नाउ डेज, और वी आर ऑन द फोन फॉर लॉन्ग आवर्स. सो many of us are developing stiffness of the neck and spondylitis. So if we do this on a regular basis, हर दिन सुबह शाम जब भी आपको कंप्यूटर में ज़्यादा लॉन्ग टाइम काम करना है, ये सब कर लीजिए. सांस छोड़ते हुए पहले सर को ऊपर ले जाए, फिर नीचे ले आए. अब सांस लेते हुए सर को ऊपर ले जाए, सांस छोड़ते हुए नीचे. दोनों हाथ को ऐसे वेस्ट पे रखें, कमर के ऊपर, और गले की स्ट्रेचिंग को अनुभव करें. गले की स्ट्रेचिंग को अनुभव करें. सांस लेते हुए सर ऊपर की तरफ जितना हो सके ले जाए, और गले के अंदर से सांस प्रवाहित हो रही है इसको भी अनुभव करते रहे. फील द ब्रेथ ट्रैवलिंग थ्रू योर थ्रोट विद इन द बॉडी. इनहेल, टेक योर हेड अप. Exhale, bring it close to the chest. Bring the chin close to the chest. One more time. सांस लेते हुए सर को ऊपर ले जाए, सांस छोड़ते हुए नीचे ले आए. सांस लेते हुए ऊपर ले जाए, सांस छोड़ते हुए नीचे ले आए. अब सर को दाहिना कंधा से लगाने की कोशिश करेंगे, बायां कंधा से लगाने की कोशिश करेंगे. ऑपोजिट साइड में स्ट्रेचिंग को अनुभव करें. देखिए मैडम कैसे कर रही है, ऐसा फॉलो करें. ट्राई टू टच द राइट ईयर टू द राइट शोल्डर एंड द लेफ्ट ईयर टू द लेफ्ट शोल्डर.
Feel the stretching on the opposite side of the neck. गर्दन के ऑपोजिट साइड में जो स्ट्रेचिंग हो रहा है उसको अनुभव करते रहे. These are very beneficial for everyone whoever is working in the computer for long hours. Keep your shoulders relaxed. पीछे जो कर रहे हैं वो शोल्डर को थोड़ा रिलैक्स रखें, शोल्डर को ऐसा स्टिफ ना करें. Now we will turn the head to the right side. जैसे दाहिना मुड़ के देखने की कोशिश करें, फिर बायां मुड़ के देखने की कोशिश करें. Right and left, right and left, right and left, right and left. भुजबली विकासक. दोनों हाथ को साइड से ऊपर की तरफ उठाना है और हाथ को उल्टा करके हाँ ऐसे टच कराना है. फिर सांस छोड़ते हुए नीचे कर दे, सांस लेते हुए ले जाए ऊपर. These are all warm-ups before we start doing yogasana. We should do all this to get the body ready for yogasana. सांस लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर करें, सांस छोड़ते हुए नीचे. सांस लेते हुए ऊपर की तरफ ले जाए, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ. Inhale and exhale. Relax. We will do shoulder rotation. देख लीजिए कैसे कर रहे हैं. दोनों हाथ को शोल्डर्स के ऊपर, एल्बोज जॉइन करके सांस लेते हुए हाथ को पीछे से सामने. शोल्डर रोटेशन. करते रहे. गहरी लंबी सांस. This increases the mobility of our shoulder muscles and joints. This is preventive for spondylitis. If you do this, you will not be affected by frozen shoulder and spondylitis. And this also helps us deepening our breath. So people who suffer from breathing problems, asthma and all, they should also do this. Relax. आंखें बंद करें. 3 गहरी लंबी सांस ले और छोड़े. हाथों को ढीला छोड़ दे. गहरी लंबी सांस ले. मुख से सांस को छोड़े, नाक से सांस ले. पूरा शरीर को ढीला करते जाए. कटी चक्रासन, ट्रंक ट्विस्ट. देख लीजिए कैसे कर रहे. दोनों पैर को थोड़ा গ্যাপ कर ले. পেছনে যারা আছে একটু ঠিক করে দাও তো, এসে যারা যারা পারছে না তাদেরকে. देखिए हाथ को रोल, हाँ रैप अराउंड करना है हाथ को, और दूसरे हाथ को অপোজিট শোল্ডার में. সামনে থেকে অজয় যারা যারা পারছে না ঠিক করোগে, যারা যারা ভুল করছে তাদের ঠিক করো. This is a beautiful spinal twisting called Kati Chakrasan. So our entire nervous system is related to the spine. When we do the twisting of the spine, it works upon the entire nervous system. So this is a very important posture and very easy. Everyone can do it to activate your nervous system. Spinal twisting, Kati Chakrasan. Relax all of you. Eyes closed. 3 गहरी लंबी सांस लिया छोड़े. Observe your breathing. We will do squats. These are called knee movements. दोनों हाथ को सामने लाए, पैर के बीच में थोड़ा गैप कर ले. सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ बैठे, as if you are sitting on a chair. सांस लेते हुए ऊपर की तरफ उठ जाए. Those who are suffering from arthritis, avoid this. Rest of you can do it. किसी को कोई हार्ट डिजीज़ है तो मत करें, बाकी सब कोई धीरे धीरे कर सकते हैं, अपने शरीर के हिसाब से करें. This is excellent for blood circulation all over the body. It is curative for many diseases. Strengthens the heart, your leg muscles. If you do this, then you will be able to avoid arthritis in future. But once you have arthritis, you have to avoid this posture. Okay? So all of you do this. As you sit down, exhale. As you stand up, inhale. Few more times.
So all the day you are sitting on a chair. If you do this, you will be able to make your lower back flexible. So you will not have lumbar spondylitis. Relax. Relax, all of you. Tarasan. This is very easy. Spinal stretching again. Interlock the fingers above your head. Stretch your hands up. Those who can, they will stand on their toes. जिन लोगों को बैलेंस करना अच्छा से आएगा वो लोग अपने पैर के उंगलियों के ऊपर खड़े हो जाए, बाकी सब कोई पूरा पैर को ज़मीन पे रखे. Deep breathing. Fix your eyes at one point. Fix your eyes at one point and see how much you can balance. This will help us balance our life also. Deep breathing. Focus at one point. Don't move your eyes. एक जगह देखें. आपको इधर उधर करेंगे तो बैलेंस नहीं रहेगा. रिलैक्स रिलैक्स ऑल ऑफ यू. देखिए ये आसन करने का फ़ायदा क्या है. ये हम लोग अपने बॉडी को एवरी डे इफ़ यू आर डूइंग इट, वी आर ट्रेनिंग आवर बॉडी टू बी इन अ डिफ़िकल्ट पोजिशन. एंड एट द सेम टाइम you will see while doing yoga, we ask you to focus on the breath. By focusing on the breath, we have a control over the mind. So, your memory increases to balance your body and keep your mind calm. So, this is something which you apply to your daily life also later on. जब आप योगा मैट से बाहर होते, अभी तक आए नहीं हैं, जाएंगे उसमें. तो योगा से अभी जो आसन ये दिखा रहे थे ना, वृक्षासन, ये करने से क्या होता है, फोकस इंप्रूव करता है. तो आपको ऑफिस में, घर में, सब जगह फोकस का ज़रूरत होता है. और बॉडी डिफ़िकल्ट पोजीशन में है तो आप ट्रेन करें अपने माइंड को कि डिफ़िकल्ट पोजीशन में भी मुझको मन को फोकस रखना है और काम रहना है, शांत रहना है. हम लोगों को क्या होता है, डिफ़िकल्ट पोजीशन में जो हमारा प्लान नहीं है, प्लान के बाहर कुछ होता है तो हम लोगों को स्ट्रेस आ जाता है. तो योगा आसनास हेल्प यू to manage this stress by training our bodies. We will see Vrikshasana. Vrikshasana पहले दाहिने पैर से करें. हाँ, पहले दाहिने पैर से डाल देते हैं. Again you have to keep your focus at one point. Look at one point and do Vrikshasana. जो जितना कर सकते हो उतना करें. एक ही जगह देखें. Vrikshasana, it helps us maintain our balance and focus in life. Keep observing your breath. Keep observing your breath. जितना हो सके सांस प्रश्वास को देखें. Relax. Opposite leg. Every one of you have done excellent. Excellent. वृक्षासन सबको ही गलत करता है. Let's clap for each one of you. Clap, 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 clap. All of you have done excellently. Clap for yourself. Opposite leg. I must say that you all have a lot of focus in life. आँख को बैलेंस कर लेंगे तो वो करना आसान हो जाता है. रिलैक्स रिलैक्स. पादहस्तासन. एदिके घुरे घुरे. सांस लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर करें, सांस छोड़ते हुए नीचे. जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है मत करें, स्पॉन्डिलाइटिस है मत करें, बाकी सब कोई कर सकते हैं. जितना हो सके. We don't have any prize for anyone doing good, so there is no competition going on. So as much as you can do. Relax, relax, relax. Relax. Deep breathing. आंखें बंद कर ले. 5 गहरी लंबी सांस ले और छोड़े. 5 deep long breaths in and out. And relax your whole body. Observe your breathing. Now we will do Ardha Chakrasana. See first how she is doing. Both the hands on your waist and little bit of bending at the back side. Little bit of bending at the back side. So most of the time when we are doing computer and all, we are stooping in front. So if we do this,
This is bending the back on the opposite side, and gradually this will help us maintain our posture. Deep breathing, people who suffer from breathing problem also, this is beneficial for them. पीछे की तरफ थोड़ा सा बेंड होके रहे, गहरी लंबी सांस ले और छोड़े. Relax, विश्राम. 3 deep long breaths in and out. आंखें बंद करें, अपने सांस को देखें, सांस की गति को. Right now we are all alive because of this breath. So accept each breath flowing into your body. Deep long inhalation, very gradual exhalation. Trikonasana. Spread both the legs. Turn the right leg outward, right feet outward. Like this. सब कोई एक साथ करे तो देखने में अच्छा लगता है. सब कोई राइट साइड पहले कर ले. अपने राइट साइड में पहले बेंड हो. सब कोई अपने राइट साइड में पहले बेंड हो. There is a symmetry in the practice then. Then he will get a good photograph also. Nice. Look up towards your palm. Opposite side. ऊपर अपने हाथ की तरफ देखना है. हाँ, जिन लोगों को लगता है थोड़ा घुटना बेंड करने से इजी होगा, वो लोग घुटना बेंड करके भी कर सकते हैं. हाँ. Look up towards your palm. নিজের হাতের পাতার দিকে তাকান প্রত্যেকে. Deep breathing. Relax. Sit down on the ground with your legs spread in front. Both the hands at the back side and relax. Like this. 3 deep long breaths in and out. Relax your head at the back side. Now we will do Bhadrasana. See first how she is doing. Bhadrasana. Like this. Try to interlock the fingers. Yes. And hold your toes. Straighten your back as much as you can. Deep breathing, eyes closed. आंखें बंद करें. शरीर में क्या हो रहा है उसको अनुभव करें. Keep your eyes closed. शरीर में क्या हो रहा है उसको अनुभव करें. Deep breathing. Relax. Spread your legs again in front. We will go into Vajrasana demonstration. Now, those who have got arthritis will avoid this. They will not do it. Rest if you can do it. Sit on your heel and back straight. पीठ को सीधा करें जितना हो सके. कंधों को ढीला रखें. गहरी लंबी सांस लें. आंखें बंद. ध्यान को अपना मेरुदंड की तरफ ले जाए. Take your awareness towards your spinal cord. Deep breathing. As you inhale, observe your spine from the base of the spine to the top of the head. As you exhale, bring your awareness back to the base of the spine. सांस लेते हुए अपने ध्यान को मेरुदंड के नीचे से ऊपर की तरफ ले जाए. सांस छोड़ते हुए ऊपर से नीचे की तरफ ले आए. From this posture we will go into Ustrasana. First you see, then you do. Stand on your thighs, yes, and take one hand at the back, hold the ankle region and then the opposite hand. एक एक हाथ करके पीछे ले जाए. उष्ट्रासना. अच्छा, जिन लोगों को नहीं हो रहा है उन लोगों का अर्ध उष्ट्रासना. जो लोग नहीं कर पा रहे वो लोग ऐसे करें. Deep breathing. People who suffer from asthma, breathing problems,
They must do this. Excellent, excellent for making your lungs more active. And when we go to do this, I see many of you are young, but we can understand how much our body has become stiff. So this will help us keep our spine flexible. Relax, all of you. Relax. Lie down on your stomach in front. पेट के बल लेट जाए सामने, सब कोई थोड़ा जगह बना ले. You can come in front, there is a lot of space. Yes. Bhujangasana. Join both the legs. जो योगा प्रोटोकॉल में वही करा रहे हैं आपको. भुजंगासना. Yes, this everyone can do. ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं. This has been given in the yoga protocol because this is beneficial for everyone. People with slip disc and all, they can do this. If your spine is very flexible, you can do like that. नाभि तक उठाना है. Raise up till your navel. गहरी लंबी सांस ले, धीरे धीरे सांस छोड़े. Exhale slowly. Inhale and exhale slowly. Relax. Shalavasana. We will raise both the legs. Make a fist. Put it under your thighs. And raise both the legs together. Chin on the ground. Normal breathing. Normal breathing. Relax. Lie down on your back. पीठ के ऊपर लेट जाए. Supine posture. Setu Bandh Asana. This is like a bridge. That is why it is called Setu Bandh Asana. See how she is doing it. Setu Bandh Asana. You have to raise from the waist. Bend your knees and raise from the waist. कमर से ऊपर उठाए. Setu Bandh Asana is excellent for maintaining the flexibility of our lower back. If you do this on a regular basis, then you will not suffer from lower back pain and other problems of the spine. Relax, all of you. Relax, all of you. Lie down. Keep lying down on the back. पीठ के ऊपर ही लेटे रहे. पीठ के ऊपर ही लेटे रहे. 5 deep long breaths in and out. गहरी लंबी सांस ले, धीरे धीरे छोड़े. आराम से लेट जाए. We are through with Setu Bandh Asana. Now we will raise both the legs up. दोनों पैर को थोड़ा ऊपर उठाए. दोनों हाथ बॉडी के साइड में रहेगा. उत्तान पादासन. And hold your legs. Join both the legs. Normal breathing. Your body is in a difficult posture, but we are training our mind to be calm in this posture. Observe your breathing. Relax. 3 गहरी लंबी सांस ले और छोड़े. लेटे रहे. Keep lying down. The next posture will also be lying down. Relax, all of you. Pavan Muktasana. Pavan Muktasana. People who suffer from digestive problems, excellent for them. See how she is doing. Pavan Muktasana. পেছনে যারা আছে একটু ঘুরে ঘুরে সবাইকে একটু করিয়ে দাও তো, পেছনের দিকে দেখতে পাচ্ছেন না. Pavan Muktasana. Bend both the knees and bring it close to your stomach. With both the hands, hold your knees. Normal breathing. Keep breathing normally.
Pavan Muktasana is excellent for people who have digestive problems, constipation and other problems. If you do this on a regular basis, then you will be able to cure all these problems. So relax, relax. We will lie down in Shavasana for some time. आंखें बंद कर ले. आंखें बंद करे, पूरा शरीर को ढीला छोड़ दे. Observe your breathing, deep long inhalation and very gradual exhalation. धीरे धीरे प्रश्वास छोड़े, धीरे धीरे सांस ले और कोई जल्दबाजी ना करे. बहुत धीरे धीरे प्रश्वास बाहर छोड़े. Keep observing your breath. Right now you are alive because of this breath. So love and respect each breath that is flowing into your body. गहरी लंबी सांस ले, धीरे धीरे प्रश्वास छोड़े. Now we will make a humming sound and we will observe the sound vibration within every cell of the body. जैसे मुख को बंद करके हम लोग माँ बोलने की कोशिश करते हैं, तब जैसा फीलिंग्स होता है पूरा शरीर में, उसको अनुभव करेंगे. इसको स्लीपिंग भ्रमरी भी बोलते हैं. एक बार देख ले, सुन ले कैसे हम लोग कर रहे हैं, फिर लेटे लेटे ही करना है. सुन ले. यू विल ऑब्जर्व इट. यू कीप लाइंग डाउन, कीप लाइंग डाउन. यू डोंट हैव टू सिट अप. कीप लाइंग डाउन. गहरी लंबी सांस ले, छोड़ते हुए इस शब्द को पूरा शरीर में अनुभव करें. फिर एक गहरी लंबी सांस ले. हाथों को दोनों साइड पे खुला रखे. हाथों को शरीर के दोनों साइड में खुला रखे. पूरा शरीर को एकदम रिलैक्स रखे. पैरों को सीधा कर ले. सांस ले. Inhale. फिर से सांस ले, छोड़ते हुए इस शब्द के स्पंदन को पूरा शरीर में अनुभव करें. Observe the sound vibration in every cell of the body. Vishram. Relax your efforts and lie down. Keep lying down. Vishram kare. Relax all efforts and repose within yourself. সমস্ত চেষ্টা ছেড়ে নিজের অন্তরে গভীর বিশ্রাম করুন. Very gradually turn to your right hand side. Very slowly sit up from your right hand side. दाहिना ओर मुड़ जाए. दाहिना ओर से धीरे धीरे उठ के बैठ जाए. अब हम लोग थोड़ा प्राणायाम का अभ्यास करेंगे. जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, इंसोम्निया है, नींद नहीं आता है ठीक से, माइग्रेन का प्रॉब्लम है,
या कोई भी हेल्थ इश्यूज़ है उन लोगों के लिए प्राणायाम बहुत इफ़ेक्टिव होता है। और जिन लोगों को गुस्सा जल्दी आ जाता है, इरिटेटेड जल्दी हो जाता है, हाँ, तो उन लोगों के लिए प्राणायाम बहुत ज़्यादा, जिनको होता है तो ज़्यादा करके प्राणायाम करना चाहिए। करना तो सभी को चाहिए प्राणायाम करके। प्राणायाम करने से क्या होता है, हम लोग का जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो तो इम्प्रूव करता है। दीज आर द फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम। So nowadays, because of the pollution and all this breathing problem, diseases coming in, virus and all, so many people are facing all these problems. So if you do pranayam on a regular basis, then you will see that your mind will be very calm and you will be able to avoid many diseases of the body. Okay. So first pranayam we will learn is called Nadi Shodhan Pranayam. This is breathing alternately through the nostrils. First what you will do, you see. First, close the right nostril with the thumb. Exhale through the left nostril. बायां नासिका से प्रश्वास को छोड़ दे। फिर बायां नासिका से सांस ले, बंद करके फिर दाहिनी नासिका को खोले। दाहिनी नासिका से सांस छोड़े, धीरे धीरे करे। दाहिनी नासिका से सांस ले, बहुत धीरे धीरे। दाहिनी नासिका को बंद करके फिर बायां नासिका को खोले, धीरे धीरे प्रश्वास छोड़े। Very gentle and subtle breathing, eyes closed. Observe your own breath. Keep your entire awareness on the breath right now. Nadi Shodhan Pranayam. Make every breath deep and long. हर एक सांस को गहरे करे और लंबी करे। Slower your breathing, it is better for your system. Eyes closed, आंखें बंद करके करें। ध्यान सांस की गति पर रखें। हर एक सांस शरीर को प्राण प्रदान कर रही है, हर एक प्रश्वास शरीर को विश्राम प्रदान करती है। इसका अनुभव करते हुए करें। हर एक सांस की गति को बहुत धीरे कर ले और गहरी करे सांस को। Deep long inhalation and very gradual exhalation. Complete exhalation. Your exhalation should be longer than inhalation. Slowly exhaling through the left nostril, relax. बायां नासिका से प्रश्वास छोड़े और हाथों को गोद के ऊपर रख दे खुलकर। आकाश की तरफ खुला रहेगा हाथ। आंखें बंद। We are through with this pranayam. Complete this round and relax your hands. Eyes closed. Observe your normal breathing. Observe the normal breathing. ऑब्जर्व योर ओन माइंड। अपने मन को देखे। मन चंचल है, शांत है, जैसा भी है, अपने मन को देखते रहे। यू आर अ विटनेस टू योर ओन माइंड। आप अपने मन के दृष्टा हो। मन जैसा भी है, चंचल है, शांत है, आप उसको देखते रहे। यू आर नॉट द माइंड बट यू आर अ विटनेस to the play of the mind. आप मन नहीं हो, मन के दृष्टा मात्र हो। We will do Brahmari Pranayam now. See how she is doing. We have to first, you listen. We have to plug the ears and inhale, and while you exhale make a humming sound. Listen to the sound within your body. Take a deep long breath in.
आंखें बंद करें, आंखें बिल्कुल बंद रखें, कीप योर आइज क्लोज्ड। विश्राम करें, आंखें बंद रखें, कीप योर आइज क्लोज, रिलैक्स योर हैंड्स। अब अपने मन को अनुभव करते रहें। Whatever is happening within your mind, just be observant of it, whether you're feeling calm or you're feeling restless. जो भी मन में हो रहा है, आप उसके दृष्टा मात्र हो। अपने मन को एक दृश्य जैसा देखते रहे। Your mind is like a scenery in front of you, and you are the witness to this mind. दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में ले ले। सभी के मंगल के लिए प्रार्थना करेंगे। वसुदैव कुटुंबकम मतलब सिर्फ मेरा नहीं, सबका मंगल हो, सब निरामय हो और सब शांति से रहे। मेरे साथ साथ सब कोई बोलेंगे। गहरी लंबी सांस ले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। जब इच्छा हो धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। तो अभी कैसा है मन की स्थिति? हाउ इज़ द माइंड राइट नाउ? लिटिल बिट काम देन बिफोर और मोर रेस्टलेस? हाउ मेनी ऑफ यू आर फीलिंग काम? रेज योर हैंड्स। थोड़ा सा शांत लग रहा है? 1%, 10%, जिसको जैसा भी हो। देखिए, बहुत ऐसे लोग हैं आप में से कभी योग किए ही नहीं है। आज थोड़ा सा प्रैक्टिस से ही मन इतना शांत हो सकता है। तो मन को अशांत करने के लिए हम लोग कितना टाइम देते हैं?
दिन में सारा दिन इधर उधर का काम, मोबाइल, आपका लैपटॉप, ये मोबाइल आने के बाद तो मन को शांत करना बहुत मुश्किल हो गया है। टेलीविज़न, एवरीथिंग इज़ टेकिंग योर माइंड आउटवर्ड। थोड़ा सा टाइम में ही मन इतना शांत हो सकता है। तो मन को शांत करना डिफ़िकल्ट नहीं है, प्रैक्टिस का अभाव है। प्रैक्टिस हम लोग करेंगे तो धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा, स्ट्रेस एंजाइटी कुछ नहीं रहेगा। और आजकल ये बहुत रिसर्च करके देखा गया है कि आधा से ज़्यादा रोग का मूल है ये स्ट्रेस और एंजाइटी। स्ट्रेस एंजाइटी रहेगा तो कोई रोग शरीर में हो तो वो बढ़ जाता है, और स्ट्रेस एंजाइटी नहीं रहेगा, आप हैप्पी हो, यू आर फीलिंग गुड, शांत हो, तो कोई रोग है भी तो वो आपको कम लगेगा। कितने को ये अनुभव है जीवन में? हाउ मेनी ऑफ यू हैव फेल्ट दिस रियली, दैट व्हेन यू आर काम एक्चुअली यू फील लाइक इफ देयर इज सम प्रॉब्लम विद द बॉडी, थोड़ा सा दर्द है इधर उधर, वो फील नहीं होता है जब अच्छा लग रहा है, यू आर हैप्पी। कितने को ये अनुभव है? और जिस दिन मूड ठीक नहीं रहता है सुबह से, उस दिन थोड़ा इधर से उधर होने से भी लगता है कितना कुछ हो रहा है ये सब। तो योग का अभ्यास अगर हम लोग अपने जीवन में ला सकते हैं तो ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जो भी है उससे हम दूर रह सकते हैं। फिजिकल बेनिफिट्स और सबको अपना बना सकते हैं। कैसे? यू विल स्टार्ट रेडिएटिंग पॉजिटिव एनर्जी इफ़ यू डू योगा, देन एवरीवन विल वांट टू बिकम योर फैमिली मेम्बर, लाइक एवरीवन विल वांट टू बिकम योर कुटुंब, फ्रेंड। तो अब कोई किसी को प्रश्न है, किसी प्रश्न का उत्तर? एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टुडेज program and practice? योगाचार्य ने एक बहुत ही अच्छी प्रदर्शन के द्वारा एक हमारी ये जो स्थापना है इसको हमने विटनेस किया है। और अगर आपको कोई प्रश्न है तो योगाचार्य जी को आपसे आप पूछ सकते हैं। योगा के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है या लाइफ के अनुसार कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल। बैक पेन के लिए भुजंगासन जो आज आपने किया वो बहुत बेनिफिशियल है बैक पेन के लिए, वो आप रेगुलर कीजिए। और जो पवन मुक्तासन भी लास्ट में किए ना, वो सेतुबंध आसन, बहुत सारे कुछ दिया, आप थे ना क्लास में, सेतुबंध आसन, ये आप 3 करेंगे तो आपका बैक पेन एकदम ठीक हो जाएगा। जो लोग भी ज़्यादा देर बैठ के काम करता है ना, सभी को ये अनुभव आता है, बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस। This has become so common nowadays because all our work has become, because of the advancement of technology, all our work has become sedentary. So if you do this, then you will not suffer from this problem. Otherwise, we have to suffer from all these problems. Any other questions? Yes. हाँ, दोस्त को जिसको गुस्सा आता है उसको प्राणायाम और ध्यान का क्लास रेगुलर कराइए, भर्ती कर दीजिए। मित्र है ना तो आपको उनको अच्छा चीज़ देखिए। हम लोग दोस्तों को क्या बोलते हैं? किस रेस्टोरेंट में खाया, क्या मूवी देखा, ये सब दोस्तों को बोलते हैं। तो योगाचार्य जी जरा उनसे पूछ लीजिए कौन सा दोस्त है। हमको पता है, हमको पता है। तो मित्र को ये गिफ्ट दे, ये सबसे अच्छा गिफ्ट है। मन के शांति सबसे अच्छा गिफ्ट है, जो आप लोग थोड़ी देर के लिए भी हो तो झलक लगा आज कि कैसा मन हो सकता है योग करने से, थोड़ी देर के लिए। और अगर हम रेगुलर करते तो कितना अच्छा हो सकता है। तो जो मित्र है, फैमिली मेम्बर्स है, उसको सबसे अच्छा गिफ्ट ये है आत्मज्ञान का और शरीर को सुंदर रखने के लिए योग का अभ्यास का। तो उन लोगों को खुद भी योग का अभ्यास करें, उन लोगों को भी योग के अभ्यास में ले आए। और थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच योगाचार्य जी। और योगाचार्य जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए प्लीज़। सर आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया आज यहाँ पे आने के लिए, हमारे संग अपना टाइम बिताने के लिए। अगर आप कुछ कहना चाहें। आई वॉज असिस्टेड इन माई सेशन बाय डेमोन्स्ट्रेशन में थे मेरे स्टूडेंट शंपा चौधरी, एंड आप लोगों को दिखा रहे थे उधर बिपाशा, एंड पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा था अजय। सो ऑल ऑफ दे आर माई स्टूडेंट्स एंड दे आर ऑल्सो इक्वली मीन्स दे हैव हेल्प मी टू अरेंज दिस सेशन। थैंक यू। अच्छा, एक अनुरोध आया है कि एक मंत्र से ख़त्म किया जाए। तो सब कुछ पूर्ण ख़त्म हुआ है तो पूर्णता की अनुभव लेके जाना चाहिए। हाँ, तो ये ईशावास्य उपनिषद का मंत्र है कि पूर्णता अपने अंदर अनुभव हो, कि पूर्णता, फुलफिलमेंट। सो वी डू एवरीथिंग व्हेन वी स्टार्ट फीलिंग फुलफिल्ड, देन वी आर हैप्पी।
तो आनंद कैसे अनुभव हो सकता है? जब पूर्णता की अनुभूति होता है। तो ये एक ईशावास्य उपनिषद का मंत्र है, बहुत सुंदर मंत्र है। पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मतलब ये समस्त ब्रह्मांड, समस्त मनुष्य जगत सब पूर्णता से ही तैयार हुआ है, इसमें कोई अपूर्णता का बोध नहीं था। और ये पूर्णता से तैयार होने से, जन्म लेने से, जिससे जन्म लिया उसमें भी कोई अपूर्णता का बोध नहीं है। ये भी पूर्ण है, वो भी पूर्ण है। और इसका ध्यान हम लोग करेंगे तो हम में भी पूर्णता का बोध आएंगे, अ सेंस ऑफ कंटेंटमेंट which is lacking in society today. I told in my speech that we are having so many good cars, dress, money, everything, but we are not content. So we will chant this mantra and end the session. आंखें बंद करके बैठे, गहरी लंबी सांस लें। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय